السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں مہک اسلام۔ بلیٹن کے آغاز میں موسم کی بات کرتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی ہے، گرمی کی شدت کم ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی تیز آندھی اور بارش متوقع ہے۔ شہر قائد میں دن بھر شدید گرمی اور حبس کے بعد شام ہوتے ہی بادلوں نے انٹری دے دی۔ شام ڈھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ کالے بادلوں سے ایسی بوندیں گری کہ شہر کا درجہ حرارت گر گیا۔ ملیر ماڈل کالونی اور ایئرپورٹ کے اطراف تیز بارش ہوئی۔ گلشن اقبال، جمشید روڈ، لیکٹاوا سمیت دیگر علاقوں میں بادل کھل کر برسے۔ بارش شروع ہوتے ہی مختلف علاقوں سے بجلی غائب ہو گئی۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں شہری چھتریاں کھول کر رکھیں، آج بھی تیز آندھی اور بارش متوقع ہے۔ کراچی میں بجلی کی طلب میں کمی کے باوجود کہ الیکٹرک نے شہریوں کو تڑپا دیا۔ بیشتر علاقوں میں 8 گھنٹے بجلی غائب ہے۔ شہر بھر میں اعلانیہ کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے۔ مستثنی علاقوں میں بھی بجلی کی گھنٹوں بندش نے شہریوں کا جینا اجیرن کر دیا۔ اشرف خان رپورٹ کریں گے۔ اجلاس پہ اجلاس، یقین دہانیاں اور اعلانات، کچھ کام نہ آیا۔ کراچی والوں کو لالی پاپ دے کر مسلسل اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ اعلانیہ کے ساتھ ساتھ مستثنی علاقوں میں بھی غیر اعلامیہ لوڈ شیڈنگ رہائشیوں کا مقدر بن گئی۔ اوپر سے اعلان 1 گھنٹے کا، جبکہ بجلی 2 سے 3 گھنٹے جا رہی ہے۔ سی ای او کے الیکٹرک پہلے ہی کہہ چکے کہ لوڈ شیڈنگ کا جن قابو کرنے میں مزید چند سال اور لگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر میں بجلی کی طلب میں 100 میگا واٹ کمی کے باوجود شارٹ فال 450 میگا واٹ پر برقرار ہے۔ گرمی میں 8 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ پر شہری بلبلا اٹھے۔ سارا زمانہ رو رہا ہے، اس کیسی سے کب جان چھوٹے گی اس ادارے سے؟ جب تک گورنمنٹ ان کے ساتھ وہی والی بات ہے کہ ڈنڈا نہیں اٹھائے گی، یہ گورنمنٹ کو بھی لالی پاپ دے دیتے ہیں۔ گیس کا مسئلہ، فرنس آئل کی کمی، کبھی فالٹس کے نام پر تو کبھی مینٹیننس کے نام پر بجلی آئے یا نہ آئے، شہری ہزاروں روپے کے بل ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ جبکہ لاہور میں موسلا دھار بارش نے شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ گلشن راوی میں کرنچ لگنے سے 12 سالہ بچہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ تیز بارش کے باعث کہیں درخت گرے تو کہیں ٹریفک کا نظام معطل ہو گیا۔ جہانگیر خان رپورٹ کریں گے۔ ساون کی موسلا دھار بارش ایسی برسی کہ شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ گلشن راوی پارک میں داخل ہوتے ہوئے گیٹ پر لگے سٹال کے قریب فریزر سے کرنٹ لگنے کے باعث 12 سالہ زین موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ کلمہ چوک کے قریب بجلی کی مین تار گرنے سے ٹریفک بلاک ہو گئی، جبکہ اللہ چوک پر تیز ہوا اور بارش کے باعث درخت گر گیا۔ شہر کی مصروف شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے راہگیروں کو کوفت کا سامنا کرنا پڑا۔ متعدد علاقوں میں فیڈر ٹرپ کرنے سے بجلی کی فراہمی بھی معطل رہی۔ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ کراچی میں اب بھی بڑی تعداد میں غیر قانونی اسلحہ چھپا ہوا ہے۔ اسلحے کی سمگلنگ بھی ہو رہی ہے۔ یہ انکشاف ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ڈاکٹر جمیل نے سما کو دیے گئے انٹرویو میں کیا۔ بولے اسلحہ افغانستان سے بلوچستان اور پھر سندھ لایا جاتا ہے۔ اسلحے کی سمگلنگ کے بڑے پرانے روٹس ہیں، اس میں بڑے آرگنائز گینگز انوالو ہیں، اور آل دا وے فرام افغانستان بلوچستان سے ہوتا ہوا اسلحہ اندرون سندھ بھی پہنچ جاتا ہے، کراچی بھی پہنچ جاتا ہے۔ کراچی کا بھی ایک بڑا پورس آپ کہہ سکتے ہیں بارڈر ہے انٹر پروونشل، بہت سے کچے راستے ہیں، اور ایکچولی جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو چیزیں پہنچ ہی جاتی ہیں۔ اور کراچی تو ایک ایسا شہر ہے جو شاید دنیا کے ان چند شہروں میں ہو جہاں سب سے زیادہ illicit ویپن اوور دا لاسٹ 2-3 ڈیکیڈز آئے ہیں، اور بڑی بڑی تعداد میں ریکور بھی ہوئے ہیں اور ابھی چھپے ہوئے بھی ہیں۔ اور جس قسم کا یہ اسلحہ نارمل قسم کا اسٹریٹ کرمنل کو چاہیے ہوتا ہے، وہ تو ہمارے ملک کے اندر بھی بنتا ہے۔ اسلحہ کراچی میں آلریڈی بہت موجود ہے اور مزید پہنچائے جانے کے چینلز بھی موجود ہیں۔ جبکہ ٹوبا ٹیکسنگ پولیس نے ڈکیت گینگ کے 3 خطرناک ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے شہریوں سے چھینی گئی رقم، متعدد موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ سلطان سدھو کی رپورٹ۔ اسلحے کے زور پر شہریوں کو لوٹنے والے قانون کی گرفت میں آ گئے۔ سی آئی اے ٹوبا ٹیک سنگھ نے ڈکیت گینگ کے 3 خطرناک ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 1,50,000 نقد، 4 موبائل فونز اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد ہو گیا۔
DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाजिद भरवाना ने बताया कि मुल्जिमान जिला भर में डकैती की वारदातों में मुलविस हैं। डकैती के लिए कहीं पे तैयार बैठे थे तो मुखबिर की इतला पर फरियाद ने अपनी टीम के हमरा इनको गिरफ्तार किया है। दूसरी जानिब DPO राना उमर ने डकैत गैंग की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम के लिए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट्स का ऐलान किया है। अभी आपको अहम खबर देंगे कि वक्त कम है, जमीन बेचो और निकलो। KMC ने 50 अरब रुपए मालियत की जमीन औने पौने दामों बेचने की तैयारी कर ली है। काउंसिल इजलास में शोर शराबे के दौरान पुरानी सब्जी मंडी में मौजूद 11 एकड़ जमीन की फरोख्त की करारदाद मंजूर कर ली गई है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज ने हमें ज्वाइन किया। अली, इतनी जल्दी किस बात की है? जी बिल्कुल, कराची का इलाका गुलशन इकबाल है। 50 अरब रुपए मालियत से जायद का 11 एकड़ का ये प्लाट है KMC का, जिसको बेचने के लिए जो है तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। सिटी काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें अहम बल्दियाती नुमाइंदगान ने शोर शराबा किया और शोर शराबे की आड़ के अंदर जो है ये कीमती अरबों रुपए की ज़मीन जो है बेचने की करारदाद मंजूर कर ली गई। सवाल ये उठ रहा है कि अगले माह जो है मेयर कराची और मौजूदा बल्दियाती सेटअप जो है उसकी मुद्दत पूरी हो रही है। जल्दबाजी में जो है अचानक ये कीमती अरबों रुपए की ज़मीन जो है वो क्यों बेची जा रही है, अब ये सवाल उठ रहा है। जो अपोजिशन जो है उनसे ताल्लुक है अपोजिशन से, जुनैद मुकाती का जमात इस्लामी पार्लियामेंट लीडर भी हैं, उनका ये कहना है कि इस प्लॉट की जो है कम से कम मालियत जो है 50 अरब की है, जबकि जो KMC के करता धरता है इसको 54 करोड़ और कुछ रुपए में जो है फरोख्त कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी जो है करप्शन जो है वो नजर आती है। इस हवाले से जब समन ने मेयर कराची, डिप्टी मेयर और म्यूनसिपल कमिश्नर से रब्ता किया कि वो इस ज़मीन की फरोख्त पर अपना मौक़िफ़ दें, तो उनकी जानिब से जो है टेलीफोन कॉल अटेंड नहीं हुई और कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। सबसे अहम तरीन बात है कि इख्तियारात का रोना रोने वाले मेयर कराची इतनी कीमती अरबों रुपए की ज़मीन जो है वो अचानक क्यों फरोख्त करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या मामलात हैं। जो अपोजिशन है KMC की, उसने नैब से जो है मुतालबा किया है कि वो ज़मीन के बेचने के मामले की तहकीकात करे और इस ज़मीन की फ़रोख्त के अंदर जो करप्शन हो रही है उसको जो है उस पर जो है कार्रवाई करें। ठीक अली, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ करप्शन का एक और मुबैना केस सामने ले आई। रुकने असम्बली खुर्रम शेर जमान ने दावा किया कि सूबे भर में 90% RO प्लांट्स बंद पड़े हैं और अवाम प्यासे हैं। आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ पाक ओएसिस को ठेका देकर उमर जिलानी को मुल्क का अमीर तरीन शख्स बना दिया। PTI आइंदा हफ्ते नैब के दफ्तर पर एहतजाज करके केस चलाने का मुतालबा करेगी। मजीद क्या कहना था खुर्रम शेर जमान का, आइए सुनते हैं। 33 अरब रुपए सूबे सिंध की आवाम को टीका लगाया गया है। ये मेरी नज़र में खुली करप्शन है, ये लूटमार है। इन RO प्लांट्स के बंद होने की वजह से आज सूबे सिंध के अंदर लाखों की तादाद के अंदर लोग प्यासे बैठे हुए हैं। मिट्टी, छाछड़ो, कोलाई, डिप्लो, नगर पार्कट, इस्लाम कोट, कांटियो, ये उमर, बदीन ठट्टा के आसपास के जितने इलाके हैं, यहाँ पे जितने RO प्लांट लगे हैं, इसमें से 90% RO प्लांट जो हैं वो इसके सारे बंद पड़े। इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द रीजन कि आज ये सारे प्लांट बंद पड़े हुए हैं। इर्रेगुलर इनके एक्सपेंडिचर्स थे। उमर जिलानी साहब वो हैं जो जरदारी साहब के लाडले हैं, जिनकी कंपनी का नाम है पाक ओएसिस। जरदारी साहब ने बोला कि काम करेगा तो खाली पाक ओएसिस करेगा। अगले हफ्ते पीर या मंगल के दिन नैब के दफ्तर जाएंगे। सूबे सिंध के अंदर जितने भी RO प्लांट्स आज बंद पड़े हुए हैं, उसके ऊपर जो करप्शन हुई है, उस पर जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, केस को फौरी तौर पे खोला जाए। और सिंध के वजीर तालीम सईद गनी एक बार फिर अपनी सफाई देने आ गए। कहा अगर वो या उनके भाई फरहान गनी मुनशियात फरोशी में मुलव्विस निकले तो वो सजा भुगतने को तैयार है। सईद गनी ने अली जैदी को मुनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। ये बात बार बार चैलेंज कर रहा हूँ, तो भाई तुम सच्चे हो, मैं झूठा हूँ, तुम फरिश्ते हो, मैं मनशियात फरोश हूँ, बकौल तुम्हारे। मेरे साथ बैठो ना, मेरे सामने बैठो, तुम ये बताओ कि मैंने क्या किया है और मैं ये बताता हूँ कि तुमने क्या किया है। तो ये चवल, जो चवलों का सरदार है, एक वजीर, उसको उन्होंने छोड़ा हुआ है मैदान में, और मैं ये बता दूं कि भाई तुम जितनी बदतमीजी कर लो टीवी पे बैठ के, जितनी ओल फोल मेरे खिलाफ बकलो, तुमने पंगा गलत आदमी से लिया है। जबकि दूसरी जानिब SSP डॉक्टर रिजवान ने वजीर तालीम सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे दिया। कहते हैं महमूदाबाद में मुनशियात फरोशी के खिलाफ बहुत कार्रवाइयाँ की, जिस पर मुश्ताक महर ने सर्टिफिकेट दिया। मजीद बात करेंगे, अहमद रहमान खान ने हमें ज्वाइन किया। अहमद, डॉक्टर रिजवान का मजीद क्या कहना था?
जी बिल्कुल, सईद गनी की जानिब से एसएसपी डॉक्टर रिजवान पर जो इल्ज़ामात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए, उस पर डॉक्टर रिजवान से हमारा राब्ता हुआ था। उनका ये कहना है कि पाबंदी की वजह से तो वो टीवी पर तो खुद नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने जो हमसे गुफ्तगू की है तो उसमें वो कहते हैं कि जी जो सईद गनी साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो 2018 में जब वो SP जमशेद तैनात थे, उन्होंने महमूदाबाद और चनेसर गोट के इलाकों में मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया था। और इस ऑपरेशन के बाद उस वक्त के एडिशनल IG कराची मुश्ताक महर, जो मौजूदा IG सिंध हैं, उनकी जानिब से बाकायदा उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया गया था। तो उनका ये कहना है कि अगर वो ऑपरेशंस ना किए होते और अगर उनके पास चनेसर गोट में बिकने वाली मंशियात के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो कैसे ना सिर्फ वो एक रिपोर्ट बनाते बल्कि उनको वो सर्टिफिकेट भी क्यों दिया जाता जो कि मौजूदा IG सिंध और उस वक्त के एडिशनल IG कराची मुश्ताक महर की जानिब से उनको दिया गया था। जी आगे बढ़ते हैं, वजीर आजम की बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला मौखर कर दिया है। शहर कायद में लोड शेडिंग का मसला फौरी हल करने की हिदायत कर दी। काबीना कमेटी इजलास में वजीर आजम ने कहा कि मसाइल हल होने तक नेशनल ग्रिड से कराची को बिजली फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर अपनी रिपोर्ट के साथ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई की अहम बैठक। वफाकी वज़रा असद उमर और अमीनुल हक की मुखालफत काम आ गई कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफे का फैसला मुअख्खर। इमरान खान ने कराची वालों के लिए बिजली के निर्ख फौरी न बढ़ाने की हिदायत कर दी। बिजली 2 रुपए 79 पैसे फी यूनिट महंगी करने के ECC फैसले की तौसीक न किए जाने पर कराची के अवामी नुमाइंदों का इजहार तशक्कुर। मैं ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने फैसला मौखर करके कराची के अवाम का दिल जीत लिया है। इजलास में हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के मुआहदे पर नजरसानी पर भी गौर किया गया। तय पाया कि विफाक पर सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए टैरिफ में यकलख्त नहीं बल्कि मरहलावार इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म की कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम, सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने और लोड शेडिंग से नुकसानात का तखमीना लगाने की भी हिदायत। कहा मसाइल हल होने तक नेशनल ग्रिड से कराची को बिजली फराहम की जाए। गैस टैरिफ के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में 27% आबादी को सस्ती मकामी गैस की सूरत में रिलीफ मिल रहा है, जबकि बाकी सार्फिन को महंगी दरामदी LPG इस्तेमाल करना पड़ती है। वज़ीर आज़म ने LPG सार्फिन को रिलीफ से मुतल्लिक जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत भी कर दी। कराची में तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग कब से, क्यों और आखिर कब तक, के इलेक्ट्रिक को अब नैब ही पूछेगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अवामी शिकायत पर नोटिस लेते हुए DG नैब कराची को 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सिस्टम अपग्रेड न किए जाने की तहकीकात भी होगी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। रोशनियों के शहर में तवील अंधेरों का कर्ब क्यों, ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के मारे कराची वालों की दुहाई नैब ने सुन ली। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए। ओवर बिलिंग के जरिए शहरियों से मुबैना तौर पर अरबों रुपए हथियाने की छान फटक भी होगी। नैब एलामिये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स का सख्ती से नोटिस लिया। DG नैब कराची को मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल करके 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म। ये तफ्तीश भी होगी कि हुकूमत के साथ मायदों के बावजूद बिजली के निजाम को जदीद बनाने के लिए सरमायाकारी क्यों न की गई। चेयरमैन नैब ने के इलेक्ट्रिक से हुकूमत के साथ किए गए तमाम मायदों की नकूल हासिल करने की हिदायत भी की है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि मायदों की खिलाफ वर्जी और अवाम को लूटने के शवायद सामने आए तो सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि नैब यकीन ही बिला तफरीक एहतसाब पर रखता है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। हल्के के अवाम को बिजली के बहरान से छुटकारा नहीं दिला सका। PTI से ताल्लुक रखने वाले आमिर लियाकत हुसैन ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। आमिर लियाकत हुसैन कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने के फैसले पर कायम। पहले ट्विटर पैगाम में और फिर समा के प्रोग्राम 7 से 8 में कहा वो अपनी बेबसी का एतराफ करते हैं कि अपने हल्के के लोगों को बिजली के बहरान से छुटकारा नहीं दिला सके। तो हम भी घर वाले, हमें को बच्चा कुछ कोई इधर उधर की बोटी छोटी मिल जाएगी, खा लेंगे, या अगर नहीं भी मिलेगी तो 1-2 रोटी गिने वाले खा लेंगे, कुछ न कुछ तो खान साहब की प्लेट। लेकिन रहेंगे घर में ही, ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरा घर है जी, तहरीक इंसाफ, मैं घर नहीं छोड़ रहा, मेरा घर है। आमिर लियाकत के पैगाम पर वफाकी वजीर अली जैदी ने तो उन्हें ट्विटर पर भाई कहकर मुखातिब किया और कहा कि उनके होते हुए आमिर लियाकत का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, मगर पार्टी के दूसरे रहनुमा उन्हें संजीदा नहीं ले रहे। आमिर भाई को 100 खून माफ है, उनको हम सीरियस नहीं लेते, चले देखते हैं, हमारा भाई है, लाडला है हमारा। आमिर लियाकत ने जवाब में हलीम आदिल शेख को एक मशवरा दे डाला। हलीम आदिल शेख साहब एक प्यारे इंसान है, अच्छे आदमी है, मैं उनके लिए बस इतना ही कहूँगा कि वो मुझे सीरियस ना लें, कोई बात नहीं, लेकिन नैब के केसेस जो उन पर बन रहे हैं उनको सीरियस ले लें। आमिर लियाकत का कहना था कि वो आवाम को जवाबदेह हैं और हल्के के मसाइल हल करना उनकी पहली तरजीह है।
आगे बढ़ते हैं। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल काम कर गई। हुकूमत ने एसोसिएशन रहनुमाओं को पीर के रोज मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। इस्लामाबाद से वहाब कामरान अपनी रिपोर्ट के साथ। ऑयल टैंकर्स कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल काम कर गई। वजारत पेट्रोलियम ने ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। बातचीत 20 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी। एसोसिएशन समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को खत लिखकर आगाह कर दिया गया। ऑयल टैंकर्स कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने जुमेरात से हड़ताल करते हुए रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सप्लाई बंद कर रखी है। उनके मुतालबात क्या हैं, नुमाइंदों की ज़बानी जान लीजिए। ओगरा का एग्रीमेंट है कि 2 साल के बाद आपका किराया रिवाइज किया जाएगा, वो भी अभी तक नहीं किया गया। दूसरा हमारा मेन मसला जो पेट्रोल होल्डिंग टैक्स है, उसकी शरह कम की जाए। हड़ताल के बायस मुख्तलिफ मकामात पर ऑयल टैंकर्स की लाइनें लग गईं। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने भी कंट्रैक्टर्स के मुतालबात की हमायत कर दी। मसला ना हल हुआ तो हम हड़ताल को पाकिस्तान लेवल पे ले जाएंगे। हमारा कंट्रैक्टर और एसोसिएशन के साथ जॉइंट जो है ये हड़ताल की कॉल हमने दी है। पीर को ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात में हुकूमत की नुमाइंदगी मुआविन ख़ुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर करेंगे। चेयरपर्सन ओगरा समेत दीगर हुकाम भी शरीक होंगे। अदालती कार्रवाई की बात करें तो पेट्रोल बहरान पर लाहौर हाई कोर्ट में पेश की जाने वाली हुकूमती रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क्स दिए। कहा, काबीना के फैसले में कोई वजीर आजम या वजीर नहीं होता। मीटिंग के मिनट से लगता है गैर मुंतखब मुआविन खुसूसी ही सब कुछ चला रहा है, वही इस बहरान का जिम्मेदार भी है। शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोल की किल्लत और कीमत में इजाफे के खिलाफ दरखास्तों की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। चेयरपर्सन ओगरा और अटॉर्नी जनरल ने 9 जून के काबीना के इजलास की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि काबीना के मीटिंग मिनट्स बताते हैं कि गैर मुंतखब मुआवने खुसूसी को कोई फिक्र नहीं। गैर मुंतखब लोगों के हुकूमत चलाने पर अवामी शोर बज़ाहिर दुरुस्त लगता है, वोट लेने वालों को फिर भी लोगों की फिक्र होती है। मुआवने खुसूसी काबीना का रुख मोड़ रहा है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कबल अज वक्त कीमतें बढ़ाने के लिए ओगरा से ज़बानी मशावरत की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये मुल्क के साथ क्या मजाक चल रहा है। कीमत पहले बढ़ाने के लिए ठोस वजह होनी चाहिए। दूसरी जानिब चेयरपर्सन ओगरा ने ज़बानी मशावरत की भी तरदीद कर दी। 26 तारीख को वाकई आपसे कोई कंसर्न ली गई थी जैसे ऑरल का? नहीं, यानी कोई कंसर्न नहीं ली। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत तहकीकाती कमीशन बनाकर 6 से 8 हफ्ते में रिपोर्ट दे देगी। अदालत ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेकर केस का फैसला करेंगे। केस की मजीद समाअत 6 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। जबकि तर्जुमान ओगरा का कहना है कि 26 जून को हुकूमत ने जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया तो उस वक्त तक हमने समरी नहीं भेजी थी। प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू में इमरान गजनवी ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 26 को जब प्राइस अनाउंस हुई है तो हमने कोई समरी नहीं भेजी। उसके बाद तो ज़ाहिर है प्राइस अनाउंस हो गई थी। सो आई थिंक प्राइसेस इतनी ही बढ़नी थी, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट का अपना डिसीजन होता है, उनकी अपनी विजडम होती है, उन्होंने हुकूमत को चलाना है। तो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, और आई थिंक दे हैव डन थिंग्स बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटीज। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि अगर आप समरी बनाते तो 25 रुपए तक का इजाफा हो जाता पेट्रोल में? ऑफ कोर्स, यस। एक और अहम मसला है कि कराची समेत सिंध भर में गंदम का बहरान मजीद संगीन हो गया है। एक दिन में 100 किलो की बोरी 400 रुपए महंगी हो गई है। फ्लावर मिल्स के बाद चक्की का आटा भी 4 रुपए महंगा होकर 66 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। गंदम का दाना सोने के भाव ताव देने लगा। सरकारी गोदामों से गंदम की सप्लाई नहीं हुई। नतीजा ये निकला कि ट्रेडर्स दोनों हाथ से लूटने लगे। एक दिन में पूरे 400 रुपए इजाफा करके 100 किलो गंदम की बोरी 5300 रुपए पर पहुंचा दी। एक बोरी पे 10 रुपए का खर्चा है 1 किलो पर। सारी लेबर है, घाटी है, पावर कंजप्शन है, शॉपिंग बैग है, कागज की थैलियाँ और अखराज। हमें सिर्फ 1 रुपया किलो बच रहा है। दिन ब दिन गंदम महंगी होने से 2.5 नंबर आटा 50 से बढ़कर 58 रुपए, जबकि चक्की का आटा 66 रुपए तक जा पहुंचा। 4 रोज में 100 किलो गंदम की बोरी 700 रुपए, जबकि 3 माह में 1700 रुपए महंगी हो चुकी है, जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। पूरे पाकिस्तान में फ्लावर मिल्स को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, उसका फायदा उठाया है प्राइवेट स्टॉकिस्ट ने। उन्होंने गंदम होल्ड कर लिए। इस वजह से हमारे पास ये ब्लैक मिलिंग शुरू हो गई है। हमें अब 3rd पर्सन से गंदम खरीदनी पड़ रही है, जिसका रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।
हुकूमत ने फौरी तौर पर सरकारी गोदामों से गंदम रिलीज ना की तो एक एक निवाला आवाम की जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है। कैमरामैन फरहान के साथ अशरफ खान, समा, कराची। आपको अहम खबर देंगे। कराची में दूध की कीमतों में इजाफे पर कमिश्नर कराची को ख्याल आ ही गया। स्टेक होल्डर्स का इजलास आज तलब कर लिया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया है। जी मुदस्सिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर में दूध की कीमतों के हवाले से जो है कमिश्नर कराची ने मीटिंग तलब कर ली है और मीटिंग का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और ये बरोज़ जुमा कमिश्नर हाउस में दूध की कीमतों के हवाले से जो है मीटिंग होगी और इसमें उम्मीद की जा रही है कि जो प्राइस है उसको कंट्रोल किया जाएगा और इस पर जो है बात भी मानेंगे। अभी ये है कि इससे कबल भी मीटिंग का इंतजाम किया गया था लेकिन दूध फरोशों ने इनकार कर दिया था क्योंकि उनका कहना था कि हम एसी सिटी के साथ जो है नहीं मीटिंग करेंगे, कमिश्नर डायरेक्ट हमें बुलाएंगे तो हम मीटिंग करेंगे। ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। जबकि सक्खर में ज़ख़ीरा अंदोज बेलगाम हो गए। आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एक हफ्ते के दौरान आटा फी किलो 7 रुपए महंगा हो गया। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात देखिए साहिल जोगी की रिपोर्ट में। तेल महंगा, गैस महंगी, अब आटा खरीदना भी आवाम के लिए मुश्किल। सक्खर में आटा 48 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए फी किलो कर दिया गया। शहरी कहते हैं गरीब से निवाला छीना जा रहा है। गवर्नमेंट की ना लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट ना लिए ये पता नहीं पड़ रहा हमें भी। गोदामों में माल भरा पड़ा है, लोगों ने रखा हुआ है, अब अपने हिसाब से चला रहे हैं। आटा चक्की एसोसिएशन ने कीमतें बढ़ाने का जिम्मेदार हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों और ज़ख़ीरा अंदोजों को करार दिया। स्टॉक माफिया जो है वो सरगर्म हुई, उन्होंने अपने गोदामों में गंदम स्टॉक की और आज हालत ये है कि जो गंदम 1600 रुपए मन थी वो 1800 रुपए मन जा पहुंची। फ्लावर मिल्स इंतजामिया का कहना है ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो फी किलो आटे की कीमत 70 रुपए से बढ़ सकती है। कैमरामैन शाहिद सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। आगे बढ़ते हैं। वफाकी हुकूमत ने पंजाब में तब्दीली और उस्मान बुज़दार को घर भेजने की कयास आराइयों की तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने दो टोक बता दिया कि वज़ीर आला पंजाब कहीं नहीं जा रहे, उन्हें तब्दील करने की तमाम खबरें बेबुनियाद है। रिपोर्ट देखिए। होशियार, खबरदार, कहीं नहीं जा रहे बुज़दार। वज़ीर आज़म का एतमाद उस्मान बुज़दार पर अब भी बरकरार। उस्मान बुज़दार आपको मैं मुबारक देता हूँ। मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने वज़ीर आला पंजाब के हवाले से कयास आराइयों की तरदीद कर दी। ट्वीट में लिखा, ऐसी तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। उस्मान बुज़दार से बेहतर कभी पंजाब में चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा। वज़ीर आला पंजाब को हटाने की बातें तो अरसे से चल रही हैं। कभी नून लीगी रहनुमा कहते रहे कि बुज़दार गए तो कभी इत्तेहादियों ने भी सुहाने ख्वाब देखे। सियासी तब्दीली आ सकती है। पंजाब है जहाँ हुकूमत बड़ी आसानी से अक्सियत खो सकती है। अब तो हमारी डिमांड यह है कि चौधरी परवेज़ अली साहब जो है वो पंजाब के वज़ीर आला बने और बाकी 3 साल जो है वो एज ए इत्तेहादी हम इनके साथ काम भी करें। आसाराइयां गुज़िश्ता साल भी सामने आईं जब जहांगीर तरीन ने लाहौर में वज़ीर आला के लिए 20 से ज़ायद लोगों के इंटरव्यूज किए। कोशिशें और ख्वाहिशात अपनी जगह, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा उस्मान बुज़दार पर ही एतमाद का इजहार किया। जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ आदमी है, उसके घर में बिजली नहीं है। आमदन से ज़ायद असासों के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि नैब हुकाम ने तस्लीम किया कि उनसे तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि गुज़श्ता पेशी पर शहबाज शरीफ ने तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए। शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का केस। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जमानत में तौसीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे तो कारकुनों की बड़ी तादाद ने इन्हें घेर लिया। इस मौका पर समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा गया। कारकुनों और पुलिस एहलकारों के दरमियान धक्कम पेल भी होती रही। दौरान समाज शहबाज शरीफ का कहना था कि इनकी बीमारी को सियासी रंग दिया गया, लेकिन वो अदालती एहतराम में पेश हुए हैं। आखिरी पेशी में नैब हुकाम ने इनसे तफ्तीश मुकम्मल होने का कहा, लेकिन नैब वाले अदालत में कुछ और बाद में कुछ कहते हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि गुज़श्ता पेशी पर शहबाज शरीफ ने तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए थे।
शहबाज शरीफ के वकला की मसरूफियत के बायस अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी और अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तोसी कर दी गई। फजाई हादसात क्यों हुए, PIA कैसे तबाह हुई? सिविल एविएशन के साबिक चीफ इंस्पेक्टर एयर कमोडोर रिटायर्ड अब्दुल बासित ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। कहा पायलट्स शराब पीकर जहाज उड़ाते थे, MQM वाले पायलट्स के पेपर पास कराते थे, तहकीकात करने पर धमकियां दी गई। अपने अफसरान को कई बार लिखा कि इदारे को बचा लें। समा के नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ बट को खुसूसी इंटरव्यू में साबिक चीफ इंस्पेक्टर घपले बताते हुए आपदीदा हो गए। एल्पा के बंदे थे और एक मेरा जो जनरल मैनेजर था, वो जो एग्जाम पेपर बनाता था, उसकी बीवी ने एक दिन मुझे कॉल किया, लाइफ सेट मिले हैं और रो रही थी बेचारे। वो कहते तुम्हें उठा देंगे, मार देंगे, इतने नहीं है वो लाइसेंस अगर हमारा बंदा पास ना हुआ। MQM का बंदा था। एक कैप्टन था, वो ही वॉज कलर ब्लाइंड, जम्बो का कैप्टन था। उसका जो को पायलट था वो मेरे पास रोता आया कि सर इसने मुझे मरवा देना। तो मैंने एक लिस्ट बना के दी कि ये एक्सीडेंट होने वाला है, we are going to lose some people. This is on record. मैंने सेक्रेटरी डिफेंस को by name and I signed it. लेटर भेजा, उसके बाद लेटर का पता नहीं कहाँ गया। उसके बाद 2-3 दिन बाद खटमंडू हुआ। सुनता नहीं कोई, ब्लैकमेल करते। पिछला हादसा जो हुआ, फिर वही होता रहेगा, कुछ चल नहीं देता। कैप्टन था, वो को पायलट ने मुझे रोते हुए टेलीफोन किया कि सर वो रोक लो, वो जो कैप्टन है ना धुत किया हुआ है, शराब पी हुए, उसकी फ्लाइट जा रही है फ्लाइंग आउटसाइड। कॉकपिट के अंदर मैं खड़ा हुआ था, मैं बोतल निकाल कर पी रहा था। तो मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? क्या सर ला तो सही लो। और उसे को बोला यो मेक श्योर कि मैं कैसा नहीं हूँ। मैं पिछले 30 साल से बोला नहीं, कोई इसका कुछ कर सकता है, इसको अभी भी रोक ले तो बेहतर है। जबकि पैल्पा ने साबिक चीफ इंस्पेक्टर सिविल एविएशन अब्दुल बासित के इल्जामात की तरदीद कर दी। प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए जनरल सेक्रेटरी पैल्पा इमरान नारेजो ने कहा पायलट्स पर धमकियां देने के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। शराब के नशे में कोई जहाज कैसे उड़ा सकता है? लाइसेंसेस के मामले पर हुकूमत ने कोई राबता नहीं किया, मामले को अदालत ले जा रहे हैं। ये एक इल्जाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और अगर ऐसा होता तो ये चीजें बड़े आम हो चुकी होती। सिविलेशन और PIA इस वक्त जिस मकाम पे पहुंचे हैं वो इसी इल्जाम तराशी के इल्जाम की वजह से पहुंचे हैं। कभी कोई मिनिस्टर अपनी लिस्टें लहरा देता है और कभी कोई एविएशन के बारे में न जानते हुए ऐसी बातें कर देता है। अगर एक बंदा शराब में तो जहाज को क्या टेक ऑफ करेगा, क्या लैंड करेगा? इदारे कमजोर हैं या अफराद कमजोर हैं तो इसका ताल्लुक पाल्पा से क्यों जोड़ा जाता है? अगर आप इतने मजबूत, अगर इतने कमजोर थे तो सीट पे क्यों बैठे रहे? गवर्नमेंट ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया और ना ही अब हम इस कंडीशन में हम तो जा रहे हैं कोर्ट में, क्योंकि जब वो हमने कितनी कोशिशें की कि गवर्नमेंट हमें ऑन बोर्ड लेती, लेकिन आई एम सो सॉरी टू से कि गवर्नमेंट को टोटली मिसगाइड किया गया। आर्ट्स काउंसिल लाहौर ने फनकारों की रजिस्ट्रेशन का बेड़ा उठा लिया है। मोबाइल फोन ऐप लॉन्च कर दी गई है, रिपोर्ट देखिए। कौन फनकार है और कौन दिखा रहा है सिर्फ फनकारियां? अब लाहौर आर्ट्स काउंसिल की मोबाइल ऐप दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। पाकिस्तानी फनकारों की रजिस्ट्रेशन के लिए लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने पाकिस्तान के फनकार के नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च करने का फैसला कर लिया। ऐप से फनकारों का डाटा इकट्ठा करने में भी मदद मिलेगी। नो मैटर वो परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक रखते हैं, फाइन आर्ट से या विजुअल आर्ट से, बहुत जल्दी ऐप अपलोड हो जाएगी और इसमें फिर आप अपना डाटा भी एंटर कर सकते हैं। फनकार बरादरी की तरफ से लाहौर आर्ट्स काउंसिल के इस कदम को खूब सराहा जा रहा है। लाहौर आर्ट्स काउंसिल इंतजामिया का कहना है कि मोबाइल ऐप की मदद से फनकारों को फिल्म, ड्रामा, म्यूजिकल कॉन्सर्ट और दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए कास्ट करने में भी मदद मिलेगी। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।